على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسپناہ عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب ذوالجلال اپنے کلام بلیغ میں ارشاد فرما رہا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قربانی کا مہینہ بھی چل رہا ہے اور دن بھی چل رہے ہیں، کل تک قربانی ہے۔ قربانی کا موسم آتے ہی ہمارے دل و دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ جانور کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دے، یہی قربانی ہے۔ لیکن قربانی کی روح، قربانی کا فلسفہ اور قربانی میں جو راز پوشیدہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا نام قربانی ہے۔ صرف جانور قربان کرنے کا نام قربانی نہیں ہے، بلکہ اسلام کو اگر وقت کی ضرورت پڑے تو وقت کی بھی قربانی دیجیے، یہ بھی قربانی ہے۔ مال کی ضرورت پڑے تو مال کو بھی قربان کیجیے، یہ بھی قربانی ہے۔ اولاد کی ضرورت پڑے تو اولاد بھی قربان کیجیے، یہ بھی قربانی ہے۔ منصب کی قربانی دینی پڑے تو منصب کو بھی قربان کیجیے۔ نیندوں کو حرام کرنا پڑے تو نیند کو بھی حرام کیجیے۔ اسلام کے لیے یہ قربانی پیش کیجیے۔ قربانی کا مفہوم اور مطلب بہت ہی وسیع ہے، بہت ہی عریض ہے، اس کے معنی میں بہت گہرائی ہے، بڑی گہرائی ہے، لیکن اس کی اصل روح کو، اصل حقیقت کو، اصل فلسفے کو یا تو ہم اسے فراموش کر چکے ہیں یا تو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے اور یہ کہہ کر کے اگر دکان بند کر کے چلا آتا ہے اور عبادت میں مصروف ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی قربانی ہے۔ یہ ہے قربانی۔ دعوت نظارہ اگر دنیا دے رہی ہے، گناہوں کی طرف بلا رہی ہے، خرافات کی طرف بلا رہی ہے، دوست اسے کھینچ کر کے ہوٹلوں کی طرف اور چوراہوں کی طرف اور موج اور مستی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور وہاں پر اگر وہ ڈٹ کر کے کھڑا ہو جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ہم تمہارے ساتھ گناہوں میں شریک ہونے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ خرافات میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے وہ برسر پیکار ہو جاتا ہے، تو یہ ہے اس کے لیے بڑی قربانی، یہ ہے اس کی قربانی۔ اور جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی نہیں ہوتی، پھر اس کی موت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے۔
अगर नमाज की बात की जाए तो ये बात समझ में आती है कि नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है। अगर रियाकारी के लिए आदमी पढ़ रहा है तो ये शिर्क खफी है। नमाज दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह रब्बुल जलाल के लिए पढ़ी जाती है। कोई अपने आप को तकवा शायरी अगर बताना मकसूद हो तो ये उसकी इबादत नहीं। लोगों को खुश करने के लिए नमाज नहीं होती है, अल्लाह को राजी करने के लिए नमाज होती है। कुर्बानी ये दिखाने के लिए नहीं है, ये अल्लाह को राजी करने के लिए है। अगर नमाज हम अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं तो ये बात समझ में आती है कि नमाज वाकई अल्लाह के लिए होनी चाहिए और अल्लाह के लिए हम पढ़ रहे हैं। कुर्बानी अगर अल्लाह के लिए दे रहे हैं तो ये बात भी समझ में आती है कि हम कुर्बानी अल्लाह के लिए करते हैं और अल्लाह के लिए कर रहे हैं, ये बात भी हमें समझ में आती है। लेकिन ये जिंदगी ये भी अल्लाह के लिए है, हम जो जी रहे हैं ये भी अल्लाह के लिए है, हम जो मरेंगे ये भी अल्लाह के लिए है, हमारी जिंदगी और मौत ये भी अल्लाह के लिए है, हमारी हयात और ममात ये भी अल्लाह के लिए है। ये समझ से थोड़ा सा अलग है। इस चीज को समझने की जरूरत है। इस चीज को हमें समझना चाहिए कि हमारी जिंदगी ये भी अल्लाह के लिए है, हमारी बंदगी ये भी अल्लाह के लिए है, हमारी कुर्बानी ये भी अल्लाह के लिए है, हमारी मौत ये भी अल्लाह के लिए। जब इस पोजीशन में आदमी आता है तो फिर उसकी मर्जी नहीं चलती है, जो कुछ चलती है तो दीन की मर्जी चलती है, फिर अल्लाह की मर्जी चलती है, फिर रसूलुल्लाह की मर्जी चलती है, फिर शरीयत की मर्जी चलती है। फिर वो ये नहीं कह सकता है कि हमारे घर में मैयत हो गई है तो कफन शरीयत के मुताबिक होगा, सुन्नत के मुताबिक लाया जाएगा। लेकिन जब शादी का माहौल हो तो फिर हम जोड़ा अपने मर्जी से लाएंगे, ये नहीं कह सकता। जिसकी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, जो ये साबित कर चुका है कि मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए है, मेरी मौत भी अल्लाह के लिए है, तो अगर उसके यहां मरनी जीवी का मामला अगर आ गया तो फिर वो ये नहीं कहेगा कि मसला पूछने के लिए हम इमाम साहब से पूछेंगे, उलमाए रब्बानियीन से पूछेंगे। लेकिन जब शादी ब्याह का मसला होगा तो ढोल ताशा हम अपने मर्जी के बजाएंगे, नाच गाना अपने मर्जी का करेंगे, खुराफात हम अपने मर्जी का करेंगे, ये वो हरगिज नहीं कह सकता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल जलाल फरमा रहा है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुम्हारी जिंदगी भी हो तो अल्लाह के लिए हो, बंदगी हो तो भी अल्लाह के लिए हो, कुर्बानी हो तो भी अल्लाह के लिए हो, तुम्हारी जिंदगी और मौत हो तो भी अल्लाह के लिए हो। फिर अपनी मर्जी उसमें नहीं चलती है, चाहे खुशी का मौका हो, चाहे गम का मौका हो, चाहे बहारों का मौका हो, चाहे मौत का मौका हो, चाहे हालात भी कैसे हो, फिर अपनी मर्जी नहीं चलती है, खानदान वालों की मर्जी नहीं चलती है, अपने भाइयों की मर्जी नहीं चलती है, अपने रिश्तेदारों की मर्जी नहीं चलती है। मर्जी चलती है तो अल्लाह की मर्जी चलती है, रसूलुल्लाह की मर्जी चलती है, फिर दीन की मर्जी चलती है, फिर इस्लाम की मर्जी चलती है। फिर उसके बाद लोगों के कहने की कोई जगह बाकी नहीं रहती है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका। ऐ अल्लाह के रसूल, कसम खुदा की मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उन्जुर माज़ा तक़ूल, तुम सोच लो क्या कह रहे हो। जबकि वो सहाबी रसूल अर्ज क्या कर रहे हैं, वल्लाही, कसम खा के कह रहे हैं, वल्लाह। उसके बाद फिर इन्नी, बेशक मैं, एक तो कसम है, इन्ना हर्फ मुशब्बा जो ताकीद के लिए आता है, उसके बाद फिर लाम ताकीद है, ला उहिब्बुका, कसम भी है, इन्ना हर्फ मुशब्बा जो ताकीद के लिए वो भी है, उसके बाद एक और लाम ताकीद है। तीन तीन ताकीद के साथ वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह इन्नी वल्लाहि इन्नी उहिब्बुका। ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपसे शदीद मोहब्बत करता हूं, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उन्जुरू माज़ा तक़ूल, सोच लो तुम क्या कह रहे हो। उन्होंने फिर दोहराया, सलासा मर्रात, 3 मरतबा उस सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे शदीद मोहब्बत करता हूं, मुकम्मल तौर पर मोहब्बत करता हूं, टूट करके मोहब्बत करता हूं।
फिर अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फ़आइद लिल फ़क्र तिजफाफा, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो, अगर वाकई तुम मुझसे इश्क करते हो, अगर वाकई तुम मुझसे उल्फत और मोहब्बत रखते हो, तो फिर तुम कुर्बानियों के लिए तैयार हो जाओ, फिर तुम फक्र फाका के लिए तैयार हो जाओ, फिर तुम मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए कि जब तुमसे तुम मुझसे मोहब्बत अगर तुम कर रहे हो, तो तुम्हारे रास्ते में कंकड़े आएंगी, तुम्हारे रास्ते में दुश्वारियां आएंगी, तुम्हारे रास्ते में आजमाइशें आएंगी, तुम्हारे रास्ते में रुकावटें आएंगी। उन रुकावटों का तुम्हें मुकाबला करना होगा। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो आजमाइश गाहों से गुजरना होगा, इम्तिहान गाहों से गुजरना होगा, उन रास्तों से तुम्हें गुजरना होगा। कभी अपने आप से तुम्हें लड़ना होगा, कभी अपने खानदान वालों से तुम्हें लड़ना होगा, कभी अपने दोस्त अहबाब से तुम्हें लड़ना होगा, कभी अपने मुआशरे से तुम्हें लड़ना होगा, कभी तुम्हें दुनिया की ताकतों से लड़ना होगा, कभी तुम्हें अपनी ख्वाहिशात से लड़ना होगा, कभी तुम्हें अपनी चाहत से लड़नी होगी। इसलिए कि तुम्हारी चाहत होगी कि तुम गुनाहों की तरफ जाओ और शरीयत उस पर और मेरी मोहब्बत उस पर कदम लगाएगी। उस वक्त तुम्हें अपने आप से लड़ना होगा। जब तुम्हारे दोस्त और अहबाब तुम्हें गुनाहों की तरफ घसीट करके ले जा रहे होंगे और मेरी मोहब्बत तुम्हें उनसे रोक रही होगी, उस वक्त तुम्हें अपने दोस्तों से लड़ना होगा। जब तुम्हारे घर वाले तुम्हें नाजायज काम करने पर उभार रहे होंगे और मेरी मोहब्बत तुम्हारे पैरों में जंजीरें डाल रही होगी, उस वक्त तुम्हें अपने बाप से लड़ना होगा, अपने भाई से लड़ना होगा, अपने खानदान से लड़ना होगा, अपने रिश्तेदारों से लड़ना होगा, बल्कि अपने आप से तुम्हें लड़ना होगा। अगर तुम इस बात के लिए तैयार हो, अगर सबसे दुश्मनी मोड़ लेने के लिए तैयार हो, तो फिर तुम मुझसे मोहब्बत का दावा कर सकते हो। और अगर तुम उसमें मोहब्बत में दावा कर रहे हो और अगर उन गुनाहों से तुम बच नहीं रहे हो, अपने आप से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर मुझसे मोहब्बत का दावा मत करो। अल्लाह रब्बुल जलाली साथ फरमा रहा है, मेरी ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि मेरी नमाज ये भी अल्लाह के लिए है, मेरी कुर्बानी ये भी अल्लाह के लिए है, मेरी जिंदगी ये भी अल्लाह के लिए है, मेरी मौत ये भी अल्लाह के लिए है। जब आदमी अपने आप को अल्लाह और दीन और रसूलुल्लाह और शरीयत के ऊपर सुपुर्द कर देता है, तो फिर आदमी की मर्जी नहीं चलती है, फिर वो अपने हिसाब से चल नहीं सकता है, फिर अपने हिसाब से वो खा नहीं सकता है, फिर अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक वो गुजार नहीं सकता है। फिर उन्हें जिंदगी गुजारनी होगी तो दीन के एतबार से जिंदगी गुजारनी होगी, तो इस्लाम के एतबार से जिंदगी गुजारनी होगी, तो शरीयत के एतबार से जिंदगी गुजारनी होगी, तो रसूलुल्लाह के फरमुदात के एतबार से जिंदगी गुजारनी होगी, तो अल्लाह के फरमान के एतबार से। और अगर हम इसमें नाकाम हैं तो इस आयत करीमा के रोशनी में हम अपने अंदर झांक करके देख सकते हैं कि हमारी जिंदगी अल्लाह के लिए है या नहीं है, हमारी मौत अल्लाह के लिए है या नहीं है। फिर अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी नहीं चलती है, फिर दीन जीता और मरता है। अपने भाई और बहनों के लिए हर कोई जीता और मरता है। कमाल तो यह है कि अल्लाह के लिए नमाज भी तेरे लिए है, ऐ परवरदिगार आलम मेरी कुर्बानी भी तेरे लिए है, और मेरी जिंदगी भी तेरे लिए है, और मेरी मौत भी तेरे लिए। यह है फलसफा कुर्बानी। कुर्बानी का फलसफा यह है, उसके अंदर राज जो छुपा हुआ है, यह है असल कुर्बानी। अपने आप को मुकम्मल तौर पर दीन के सुपुर्द कर देने का नाम है कुर्बानी। ऐसा नहीं कि कुछ हालात ऐसे हो कि वहां हम अपनी मर्जी चलाएं, और कुछ हालात ऐसे हो तो मसला पूछ लिया जाए इमाम साहब से, कुछ हालात ऐसे हो तो इमाम अल्लामा साहब से पूछ लिया जाए मसला कि इसमें करना क्या है, और कुछ मामलात ऐसे हैं कि जिसमें नहीं, दीन चाहे कुछ और कहे, शरीयत चाहे कुछ और करे, हम तो अपनी मर्जी की करेंगे। इसको दीन नहीं कहते, इसको सुपुर्दगी नहीं कहते, इसको इस्लाम नहीं कहते। नाम रख लिया हमने मुसलमानों की तरह, समझ रहे हैं कि मुसलमान है। खानदान वालों ने नाम रख दिया मुसलमानों की तरह, समझ रहे हैं मुसलमान है। शब बरात आ गया तो हलवा खा लिए, समझ लिए मुसलमान है। ईद आ गया, सेवइयां पका करके खा लिए, समझ लिए कि हम मुसलमान है। बकरीद आ गई है तो कुर्बानी करके गोश्त खा लो, मुसलमान हो गए। रबीउल अव्वल शरीफ का मौसम आ गया तो झंडे लगा लो घरों में, मजलिसें लगा लो, जुलूस निकाल लो, हम है मुसलमान। 11वीं शरीफ का महीना आया, घर घर में डेगे चढ़ा दो, हम तो है मुसलमान। यह है सच्ची मुसलमानों की असल जिम्मेदारी क्या है? क्या सिर्फ यही है कि नाम के मुसलमान बन जाओ? मुहर्रम आए तो ढोल ताशे बजा लो,
बकरीद आए तो गोश्त खा लो, ईद का मौसम आए तो सेवैया खा लो, शब बारात का मौसम आए तो इबादत छोड़ करके और सिर्फ हलवा, रोटी और हलवा में गुजारा कर लो। इसका नाम इस्लाम नहीं है। जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक गुजारने का नाम इस्लाम है और इसी को कुर्बानी कहते हैं। हालात कितने खराब से खराब और वक्त से बदतर होते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे नौजवानों को शऊर नहीं आ रहा। अरफा के बारे में पिछले जुम्मा हमने बताया था कि उसकी फजीलत क्या है, उसका मकाम क्या है। एक रात इबादत करना, इन अशराए जिलहिज्जा के बारे में बताया गया है कि शब कद्र में जितनी इबादत करने से सवाब मिलता है, एक रात में उसका सवाब मिलता है। यह हमने बताया था कि एक दिन का रोजा रखना पूरे साल रोजा रखने का सवाब मिलता है। 9वीं जिलहिज्जा को रोजा रखना एक साल आगे और एक साल पीछे, पूरे साल जो 2 साल के गुनाहों का कफारा बन जाता है। लेकिन हमारे नौजवानों का हाल यह है कि नाइट क्रिकेट का एहतमाम करके पूरी कौम को तबाही और बर्बादी के दहलीज पर ढकेलने के लिए तैयार। आखिर हो क्या गया है इस कौम को? चाहते क्या है ये कौम के लोग? पूरी कौम, पूरी नस्ल को तबाही के दहलीज पर ले जाकर के ढकेल दो, इससे तुम्हें कौन सी खुशी महसूस होगी? और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उस क्रिकेट मैच में गांव के बहुत सारी औरतें भी जाकर के देख रही थी। आपके गैरत का जनाजा नहीं निकला, एहसास आपका मरा नहीं। खुद खेल करके और तमाशों में जिंदगी गुजार रहे हो, और बिलखुसूस उस रात में जो शब 9वीं शब की रात थी, उसे 1-2 दिन पहले क्या यही मौका मिला था आप लोगों को अय्याशी और तमाशी और तमाशा और खेल करने के लिए, तालियों के गड़गड़ाहट में लोगों की नींदें हराम करने के लिए? दुनिया के हालात क्या है, मॉब लिंचिंग किस तरीके से हो रही है, मुसलमानों के साथ सियासती गंदी सियासत किस तरीके से घुस चुकी है, पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, हमें इन तमाशे सूझ रहे हैं? हमें ये खुराफात दिखाई दे रहा है? हमें क्रिकेट का मैच सूझ रहा है? अभी मुहर्रम का महीना आया है, कम से कम लाठी डंडी तलवार खेलने का इसका कोई शोभा इख्तियार करते, इसमें कोई पहल नहीं करेगा। सारी जिम्मेदारी मौलवी साहब की है, सारी जिम्मेदारी इमाम साहब की है, सारी जिम्मेदारी उलमा की है। नाइट मैच करने के लिए हजारों रुपया फूंक देंगे, लेकिन इस कौम को राह रास्त पर लाने के लिए 10 रुपया हमारे जेब से नहीं निकलता है। इस मुतबर्रक महीने में औरतों को भीड़ लगा करके उनकी इज्जतें तार तार होने के लिए वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, गुनाहों की तरफ हम रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। आने वाली नस्लों को रात भर जगा करके गुनाहों की तरफ और गुनाहों के रास्ते पर हम नहीं लगा रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? हो क्या रहा है इस कौम के अंदर? हो क्या गया है इन लोगों को? उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिलें आसमानों में। हमारी मंजिलें आसमानों में नजर आ रही कि गुनाहों में हम नजर आ रहे हैं, गुनाहों के मैदान में हम दिखाई दे रहे हैं। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा मसेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। यह है तुम्हारा मनसब। अल्लाह ने तुम्हें जवानी इसलिए दी थी कि इस्लाम की खिदमत करो। अल्लाह ने तुम्हें जवानी, तुम्हारे दीन को तुम्हारे जवानी की जरूरत थी। रसूलुल्लाह के दीन को तुम्हारे जवानी की जरूरत थी। इस्लाम की बहु बेटियों को तुम्हारे जवानी की जरूरत थी। मुआशरे के बच्चों को और उसके तालीम को तुम्हारे जवानी की जरूरत थी। तुमने अय्याशियों में खत्म कर दिया, तुमने खेल और तमाशों में खत्म कर दिया, रात गुनाहों में जाग करके तुमने खत्म कर दिया, तुमने गुनाहों में अपनी जवानी को खत्म कर दिया। उठो मेरे कौम के गुरबा को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से दहका को मयसर नहीं रोजी, उस खेत के हर खोशा एक गंदुम को जला दो। तुम्हारा किरदार तो यह होना चाहिए था, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए था, बुराई के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। राह रास्ते जो भटके हुए लोग हैं उसके खिलाफ तुम्हें आवाज उठानी चाहिए थी। शराब के नशे में जो धूत है उनको तुम्हें आवाज देनी चाहिए थी। इस दौर में भी इकबाल कहते हैं कि ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है। इन जवानों में ये जमाना अपने बराहीन को तलाश कर रहा है। वही सदाकत लेकर के अगर कोई उठेगा, अगर कोई वकालत लेकर के उठेगा, और अगर कोई सदाकत और सच्चाई लेकर के उठेगा, उस ये जमाना अपने दौर के इब्राहिम को तलाश कर रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के ताबूत
तागूती कुव्वतों के सामने तरह शीशा पिलाई हुई दीवार की तरीके से जिस तरीके से वो खड़े हो गए थे और उनकी हुकूमत को चूर चूर कर दिया था, उसके लिए उनको आजमाइशों से गुजरना पड़ा था। अगर आग में जाने की जरूरत थी तो वो आग में चले गए थे, और सोलों में जाने की जरूरत पड़ी थी वहां भी चले गए थे। अपने इलाके को खैराबाद करना पड़ा था, वो भी वो कर चुके थे। अपने बेटे को कुर्बान करना पड़ा था, वो भी कर दिए थे। यानी तमाम आजमाइश और इम्तिहानात से गुजरने के बाद ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जुल्म के खिलाफ, बर्बरियत के खिलाफ और गुनाहों के खिलाफ और शिर्क के खिलाफ और बुत परस्ती के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने आवाज उठाई थी, जिस तरीके से कौम को राह रास्त पर लाने की कोशिश की। इकबाल कह रहा है ये दौर अपने बराहीन के तलाश में है। आज भी नौजवानों में अपने बराहीन को ढूंढ रहा है। ये जमाना अपने वक्त के नौजवानों में अपने बराहीन को तलाश कर रहा है। ये वक्त लोगों के नौजवानों में अपने इब्राहिम को तलाश कर रहा है कि कोई उठे इस्लाम का झंडा लेकर के, कोई खड़ा हो इस्लाम की हमदर्दी लेकर के, कोई खड़ा हो इस्लाम की पासदारी लेकर के, कोई खड़ा हो शरीयत को बचाने का झंडा लेकर के, कोई खड़ा हो सदाकत और दयानत और अमानत को लेकर के, कोई खड़ा हो सब्र और इस्तिक़लाल को लेकर के, और इस दुनिया में इस्लाम का बोलबाला कर दे, दीन की हिफाजत का झंडा नस्ब कर दे, दीन को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे, दीन को बचाने के लिए इस कौम को जागरूक और होशियार कर दे। लेकिन ये कौम सुधरने के लिए तैयार नहीं है। ये नौजवान नस्ल अपने आप को राह रास्त पर लाने के लिए तैयार नहीं। गुनाहों में फूंकने के लिए इनके पास हजारों पैसे हैं, लेकिन दीन के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, इस्लाम सीखने के लिए, हदीस पढ़ने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। मुफ्त में भी अगर तालीम दो फिर भी इनके पास टाइम नहीं है। कौन सी कुर्बानी पेश करेंगे हम? जब सारी चीजें फ्री में भी मिल रही है, उसके बावजूद भी हम पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, उसके बावजूद भी हम दीन पर चलने के लिए तैयार नहीं है, तो हम कौन सी कुर्बानी पेश करेंगे? अल्लाह